Dear friends and students, Assalamu alaikum. I welcome you again to this YouTube channel Commerce Classes. Today, I will discuss with you an important topic of financial accounting or important topic of accounting that is called as branches of accounting. اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ اکاؤنٹنگ کے کتنے برانچز ہیں، ہمارے سامنے ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکاؤنٹنگ ایز اے سبجیکٹ اگر ہے تو اس میں ڈفرینٹ برانچز کا وجود کیوں عمل میں لایا گیا۔ مائی ڈیئر فرینڈس، مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ یہ ویڈیو جب دیکھیں گے، اس سے پہلے والا ویڈیو جو اس چینل پہ اپلوڈ ہوا ہے وہ آپ اس کو پہلے ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو سے آپ کو آج کا ویڈیو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ میں نے ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دیا ہوا ہے، وہاں سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کا آپ پچھلے ویڈیو سے کے کنیکشن میں دیکھ لیجئے۔ اس پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ سے بتایا تھا کہ فنانشل اکاؤنٹنگ کی کتنی لمیٹیشنز ہیں، اور فنانشل اکاؤنٹنگ کی ان لمیٹیشنز کو دور کرنے کے لیے ڈفرینٹ اسپیشلائزڈ برانچز آف اکاؤنٹنگ کو وجود میں لایا گیا تاکہ فنانشل اکاؤنٹنگ کے جو لمیٹیشنز ہیں، ڈرا بیکس ہیں، ان کو ایڈریس کیا جائے۔ جو اکاؤنٹنگ کے ڈفرینٹ برانچز وجود میں آئے ہیں وہ اس لیے آئے ہیں کیونکہ فنانشل اکاؤنٹنگ کے ڈفرینٹ لمیٹیشنز تھے۔ انہی لمیٹیشنز کو ایڈریس کرنا، انہی لمیٹیشنز کو دور کرنے کے لیے باقی اکاؤنٹنگ کے برانچز وجود میں آئے ہیں۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہ دنیا بڑی حد تک تبدیل ہو چکی ہے۔ اس دنیا میں آج جس دنیا کی ہم بات کر رہے ہیں، اس دنیا میں ایک سائڈ سے اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، بڑی تیز رفتاری سے اکانومیز ڈیولپ ہو رہی ہے، ساتھ میں ٹیکنالوجیکل چینجز ہو رہے ہیں، ٹیکنالوجیز امپروو ہو رہی ہیں، ہر نئے دن کوئی نہ کوئی ٹیکنالوجیکل چینج ہوتی ہے۔ اس اکنامک ڈیولپمنٹ اور ان ٹیکنالوجیکل امپرومنٹس کی وجہ سے بزنس بھی جو ہیں ان کا ایک امپورٹنٹ امپیکٹ پڑ چکا ہے، وائٹل امپیکٹ پڑ چکا ہے بزنس پہ۔ بدلتی دنیا نے بزنس کا حلیہ، بزنس کرنے کا طریقہ، بزنس کا رول، اس سب میں تبدیلی لائی ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی بزنس آرگنائزیشنز ہیں، بزنس سکیل آف آپریشنز بڑھ چکا ہے، اور لوگوں میں بھی سوشل اویئرنیس کے تئیں بڑی حد تک بیداری پیدا ہو چکی ہے۔ اب یہ اکنامک ڈیولپمنٹ آپ کہیے، ٹیکنالوجیکل امپرومنٹس کہیے، ان ساری چیزوں نے، یا سوشل اویئرنیس کہیے، ان ساری چیزوں نے بزنس کرنا کو بڑی مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آج کے زمانے میں اس چینجنگ ورلڈ میں، اس چینجنگ ورلڈ سینیریو میں، اکنامک ڈیولپمنٹ کے ورلڈ میں، ٹیکنالوجیکل چینجز جہاں ہو رہی ہے، جہاں لوگ سوشلی اویئر ہیں، اس سارے انوائرنمنٹ میں، اس ساری صورتحال میں بزنس کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ In nowadays world, it is not so easy to manage business, but managing business have become very complex. اور جب یہ مینیج بزنس کرنا کمپلیکس ہو چکا ہے، اس سارے وجوہات کی بنیاد پر جو اکاؤنٹنگ ہے، اکاؤنٹنگ کا سکوپ بھی بڑھ چکا ہے، اور لوگوں کے توقعات بھی اکاؤنٹنگ سے بڑھ چکے ہیں۔ جو لوگ اکاؤنٹنگ انفارمیشن چاہتے ہیں، ان کے توقعات اس اکاؤنٹنگ سے بڑھ چکے ہیں۔ اب جب اکاؤنٹنگ کا سکوپ بھی وائڈر ہو چکا ہے اور ڈیمانڈ بھی اکاؤنٹنگ کی بڑھ چکی ہے، اسی ڈیمانڈ کو میٹ کرنا، اسی ڈیمانڈ پہ کھرا اترنا، لوگوں کی توقعات پہ کھرا اترنا، اور جو لوگ آپ کا بدلتی ہوئی دنیا میں، جو لوگ اس بدلتی ہوئی اکاؤنٹنگ سے چاہتے ہیں، اسی بنیاد پہ ڈفرینٹ اسپیشلائزڈ برانچز آف اکاؤنٹنگ نے جنم لیا ہے، اور انہی اسپیشلائزڈ اکاؤنٹنگ برانچز کو آج ہم یہاں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسٹارٹنگ ود پہلا ہمارا تھا فائنینشیل اکاؤنٹنگ، یعنی اکاؤنٹنگ کا سب سے بڑا برانچ، دیٹ از فائنینشیل اکاؤنٹنگ، سیکنڈ ون از کاسٹ اکاؤنٹنگ، اینڈ تھرڈ ون از management accounting. Let us take them one by one, my dear friends. Financial accounting. Financial accounting basically وہ اکاؤنٹنگ ہے، یہ اکاؤنٹنگ کا وہ برانچ ہے جس کا پرپز ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے ایک
सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स का, यानी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स हों उनका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना। उतना ही नहीं बल्कि उस रिकॉर्ड की बुनियाद पे फिर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कहना, डैट मीन्स ये बताना कि ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉफिट अर्न किया है कि लॉस हुआ है। और तीसरा चीज़ ये बताना कि फिनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी बैलेंस शीट के ज़रिए से ये बताना कि इसकी माली हालात क्या है। और आखिर पे ये जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड के ज़रिए से प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन की बात की गई, ये उन इंटरेस्टेड पार्टीज़ तक पहुँचाना, ये इतला, ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना उन इंटरेस्टेड पार्टीज़ तक जिन इंटरेस्टेड पार्टीज़ जो ये इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जिनकी कोई ना कोई रुचि इस इंफॉर्मेशन में है। सो कहने का मकसद ये है कि फिनेंशियल अकाउंटिंग जो है इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग वेयर द मेन फोकस इज टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड and to ascertain the position whether our organization has earned profit or gone into losses, then to say about financial position, that means whether our financial position is weak or strong, and all this information regarding the profits, regarding the financial position need to be communicated to those interested parties who have interest in this sort of information. So this is all about financial accounting. फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद और एक अकाउंटिंग है जिसको हम कहते हैं कास्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट मीन्स लागत। कास्ट अकाउंटिंग का बुनियादी मकसद ये है, इस अकाउंटिंग के जरिए से हम ये देखते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन गुड्स प्रोड्यूस करती है या सर्विसेज फराहम करती है, आपको मालूम है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस प्रोड्यूसर्स होंगे यानी वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हों, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस विदाउट प्रोड्यूसिंग गुड्स दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। सो देयर आर ऑर्गेनाइजेशन विच आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, देयर आर ऑर्गेनाइजेशन विच आर प्रोड्यूसिंग गुड्स। अब जो ऑर्गेनाइजेशन गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स प्रोड्यूस करने के बाद उन्हें मार्केट में इन गुड्स को भेजना है। सर्विस प्रोवाइडर्स भी जो हैं उनको भी मार्केट में ये सर्विस प्रोवाइड करना है, लेकिन इससे पहले प्रोड्यूसर्स या सर्विस प्रोवाइडर्स अपना आउटपुट यानी गुड्स या सर्विसेज मार्केट में भेजें। उन्हें ये डिसाइड करना है कि हम किस प्राइस पे इनको भेजें, यानी हम कौन सी कीमत वसूल करें लोगों से अपने गुड्स पे। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। अगर एक बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो बिस्किट प्रोड्यूस करती है, उन्होंने बिस्किट का एक पैकेट प्रोड्यूस किया, अब इसी बिस्किट पैकेट को मार्केट में भेजना है। इंपॉर्टेंट ये है कि जब वो बिस्किट पैकेट मार्केट में भेजें, उन्हें ये देखना है कि हम किस कीमत पे इस बिस्किट पैकेट को भेजें। इसी तरह कोई सर्विस प्रोवाइडर है जो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मान लीजिए ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब जब वो मार्केट में सर्विस प्रोवाइड करेगा, उसको ये जानना जरूरी है कि जो मैं सर्विस प्रोवाइड करूं उस पर मैं कितना प्राइस चार्ज करूं। प्राइस चार्ज करने के लिए ये जानना जरूरी है कि जो प्रोडक्ट मैंने बनाया या जो सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूं उस पर मुझे कितना खुद लागत लग रहा है। सो कास्ट अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग है जिस अकाउंटिंग के मदद से हम ये जान पाते हैं कि जो गुड्स हमने प्रोड्यूस किए या जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उन पर हमारी खुद की कितनी लागत लग चुकी है। फिर उसी लागत पे जब हम प्रॉफिट चार्ज करते हैं, जब प्रॉफिट ऐड करते हैं तो वो प्राइस बनता है। सो प्राइस क्या होता है? प्राइस होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सो पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे पास कितना लागत लग चुका है। सो कास्ट अकाउंटिंग हमारी मदद करती है वो कॉस्ट जानने में, वो लागत जानने में जो हमने इनकर की है, जो हमने लगाई है किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में या किसी सर्विस को प्रोवाइड करने में। अब कास्ट अकाउंटिंग सिर्फ इतना ही नहीं बताती है टू कैलकुलेट द कॉस्ट, इट ऑल्सो हेल्प्स टू कंट्रोल द कॉस्ट। ये लागत को कंट्रोल भी करती है, क्योंकि ये बताती है हमें कि यही अकाउंटिंग हमें बताती है कि हम लॉसेस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, वेस्टेजेस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं और वेस्टेजेस को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो शॉर्ट में आप याद रख लीजिए, कॉस्ट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जिस अकाउंटिंग के मदद से हम
गुड्स प्रोड्यूसर या सर्विसेज जो प्रोवाइड हम कर रहे हैं उनकी लागत हम जानते हैं कि उनको हमारा कितना लागत उन पे लग चुका है, और इतना ही नहीं बल्कि कॉस्ट अकाउंटिंग के ज़रिए से हम कॉस्ट कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इसकी मदद से हम लॉसेस को अवॉइड करते हैं और वेस्टेज जो है उसको भी मिनिमाइज करते हैं। उसके बाद हमारा एक तीसरा ब्रांच है अकाउंटिंग का, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, चूंकि जो भी मैनेजर्स हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट है, असल ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी का दारमदार एफिशिएंट मैनेजमेंट या क्वालिटेटिव मैनेजमेंट पर है। जितनी एफिशिएंट हमारी मैनेजमेंट होगी, जितनी क्वालिटेटिव हमारी मैनेजमेंट होगी, जितने अप्रोप्रिएट उनके डिसीजंस होंगे, जितनी अप्रोप्रिएट उनकी प्लानिंग होगी और जितना बर वक्त वो कंट्रोलिंग कर सकें, उतना ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस स्टोरीज रकम करती है। लेकिन अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट ही इनएफिशिएंट है तो ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी की कोई तवक्कात बाकी नहीं रहती। अब ये मैनेजमेंट जो है, ये जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेती है, ये जो प्लानिंग करती है, ये जो कंट्रोल करती है, या ये जो डे टू डे मैटर्स के रिलेटेड डिसीजन ले लेती है, उस डिसीजन के लिए इसको रेलेवेंट एंड अप टू डेट एंड एट अप्रोप्रिएट टाइम इंफॉर्मेशन चाहिए, जो इंफॉर्मेशन इस मैनेजमेंट को देती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेसिक पर्पस क्या है? The objective of management accounting is to supply relevant information at appropriate time to the management so that it can take decisions, it can plan and effectively control whenever controlling is necessary. So आपने याद रखा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जिसकी जिम्मेदारी ये है कि वो बर वक्त अप्रोप्रिएट टाइम पे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दे दे मैनेजमेंट को, जिस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे मैनेजमेंट अप टू डेट अप्रोप्रिएट डिसीजंस ले सके, जिस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे वो प्लान कर सके, और जिस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर वो इफेक्टिवली कंट्रोल कर सके जहां पे उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थे 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग जो पहले से ही राइज हैं, लेकिन ग्लोबल वर्ल्ड में जो तब्दीलियां आ रही है, उन तब्दीलियों की वजह से कुछ नए ब्रांचेस भी वजूद में आए हैं अकाउंटिंग के। उनमें एक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग और एनवायरनमेंट अकाउंटिंग। चलिए डियर स्टूडेंट्स, इन नए ब्रांचेस को भी हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा क्या है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, आप इसका दूसरा नाम कह सकते हैं सोशल अकाउंटिंग। आज आप देख रहे हैं कि सारे वर्ल्ड में एक स्लोगन है, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसकी बहुत बातें हो रही है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुतालिक। असल में सोशल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जिसके जरिए से हम मेजर करते हैं, मेजर ही नहीं करते बल्कि रिपोर्ट करते हैं। वी मेजर एंड रिपोर्ट इंफॉर्मेशन regarding the impact of organization and its activities on the society। जो ऑर्गेनाइजेशन कोई डिसीजन ले, जो ऑर्गेनाइजेशन कोई काम करे, उन डिसीजंस का और उसके एक्टिविटीज का क्या इम्पैक्ट है टोटल सोसाइटी पे, जो सोसाइटी में ये ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है, जिस सोसाइटी में एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है। सो सोसाइटी हैज इफेक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन हैज इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। इस सोसाइटी में ये ऑर्गेनाइजेशन जो रन कर रही है, ये जो डिसीजंस ले रही है ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जो बिजनेस एक्टिविटीज कर रही है ये ऑर्गेनाइजेशन, इस सारे का क्या इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी पे, इसको मेजर करना और इसको रिपोर्ट करना, ये इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचाना, ये हम पहुंचाते हैं सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के जरिए या सोशल अकाउंटिंग के जरिए। अगर आपको सिंपलीफाइड टर्म्स में बताऊं, मैं आपसे अर्ज करूं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जिस अकाउंटिंग के जरिए से हम ये देखते हैं बिजनेस का सोशल इफेक्ट क्या है, बिजनेस ने जो डिसीजंस लिए हैं उनका सोशल इफेक्ट क्या है। या हम ये कह सकते हैं ये वो अकाउंटिंग है जिस अकाउंटिंग के जरिए से हम सोशल कॉस्ट्स एंड सोशल बेनिफिट्स मेजर करते हैं
اور ان کا کنٹریبیوشن دیکھتے ہیں ٹورڈز دی اوور آل سوشل ویل بینگ, اوور آل پروگرس آف دی سوسائٹی. یعنی ایک آرگنائزیشن سماجی طور پہ ذمہ دار ہے. ایک آرگنائزیشن کو پروفٹ ارن کرنا ہے, اس کو کوئی نہیں رکا سکتا, لیکن پروفٹ ارن کرتے کرتے سماج کے تئیں اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. سماج کے پروگریس میں, سماج کے ویلفیئر میں, سماج کے ویل بینگ میں اس کا کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. سوشل اکاؤنٹنگ وہ اکاؤنٹنگ ہے جو یہی آسپیکٹ دیکھتی ہے کہ یہ جو آرگنائزیشن ہے کیا یہ اپنی سوشل رسپانسبلٹی نبھاتی ہے کہ نہیں نبھاتی. اگر نبھاتی ہے تو کس حد تک یہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے ٹورڈز دی اوور آل ڈیولپمنٹ آف دا سوسائٹی. سو جو اکاؤنٹنگ ان آسپیکٹس پہ بات کرے ہم اسی اکاؤنٹنگ کو کہتے ہیں سوشل اکاؤنٹنگ. آگے بڑھیے ڈیئر فرینڈس, ہوپ یو آر انجوائنگ اٹ. ہیومن ریسورس اکاؤنٹنگ. دیکھیے عزیز دوستوں ساتھیوں, آپ کو معلوم ہے کہ آرگنائزیشن کے پاس ڈفرینٹ ایسیٹس ہیں. لینڈ ایسیٹ ہے, بلڈنگ ایسیٹ ہے, میشینری ایسیٹ ہے, میٹیریل ایسیٹ ہے, فرنیچر ایسیٹ ہے, گاڑیاں ایسیٹ ہے. وہ سارے ایسیٹس جو ہیں ان میں لائف ڈالتا ہے ہیومن ریسورس. یعنی آرگنائزیشن کے پاس جو ہیومن ریسورس ہے سب سے بڑا ویلیبل اور انمول ایسیٹ وہی ہے, کیونکہ ہیومن ریسورس ہی وہ ایسیٹ ہے جس ایسیٹ کی بنیاد پہ ایک آرگنائزیشن بہت بڑی سکسیس سٹوریز رقم کر سکتی ہے. اگر ہیومن ریسورس ہی فیل ہوا تو آرگنائزیشن کی سکسیس میں سب سے بڑی رکاوٹ پھر ہیومن ریسورس ہی بنتا ہے. اب اس ہیومن ریسورس میں آپ دیکھ لیجئے, فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا جب آپ بیلنس شیٹ بناتے ہیں, اس بیلنس شیٹ میں جو میں آپ کو آگے بھی سمجھاؤں گا, پڑھاؤں گا جب آپ کو بیلنس شیٹ کا کانسیپٹ سمجھاؤں گا, اس میں ایک سائڈ سے ہم لائبلٹیز ریکارڈ کرتے ہیں یعنی فائنینشیل اوبلیگیشنز, دوسرے سائڈ سے ہم ایسیٹس ریکارڈ کرتے ہیں یعنی بزنس کے پاس کون کون سی پراپرٹی ہے. اس بیلنس شیٹ میں کیش بھی ہم ریکارڈ کرتے ہیں, سٹاک بھی ہم ریکارڈ کرتے ہیں, میشنری بھی ریکارڈ کرتے ہیں, پلانٹ بھی ریکارڈ کرتے ہیں. غرض کہنے کا یہ ہے کہ ہیومن ریسورس کے بغیر جتنے بھی ایسیٹس ہیں ان سب کو ریکارڈ کیا جاتا ہے بیلنس شیٹ میں. لیکن المیہ ہے, سب سے بڑی پراپرٹی جو ایک آرگنائزیشن کے پاس ہے وہ ہوتا ہے ہیومن ریسورس. لیکن سارے ایسیٹس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے لیکن ہیومن ریسورس کو ریکارڈ نہیں کیا جاتا. ہیومن ریسورس کو بیلنس شیٹ میں کوئی پلیس, کوئی جگہ نہیں دی جاتی. اس لیے ایک نیا کانسیپٹ, ایک نیا برانچ آف اکاؤنٹنگ وجود میں لایا گیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہیومن ریسورس اکاؤنٹنگ. کیونکہ اس اکاؤنٹنگ میں ہم کیا کرتے ہیں, وی میجر دی کاسٹس انکرڈ. ہم جانتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے ریکروٹ کیا, جن امپلائیز کو ہم نے سلیکٹ کیا, پھر ان کو ٹرین کیا, پھر ان کو ڈیولپ کیا, یہ جو ہمارا ہیومن ایسیٹ ہے, اس ہیومن ایسیٹ اس ہیومن ایسیٹ کو لانے میں, ان کو پھر ڈیولپ کرنے میں کتنا کاسٹ ہمیں انکر ہو گیا. اور اب یہ ہیومن ایسیٹ جو ہمارے پاس ہے, یہ جو پرفارم کر رہے ہیں, اب ان کا اکنامک ویلیو ہم میجر کرتے ہیں. یہ ایک آرگنائزیشن کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے اور ان کا اکنامک ویلیو کیا ہے, جس اکاؤنٹنگ میں ہم اس ایسیٹ کی طرف بھی دھیان دیتے ہیں, اس ویلیبل ایسیٹ کی طرف بھی توجہ کرتے ہیں, اس کے ڈفرنٹ آسپیکٹس کو میجر کرتے ہیں اور ریکارڈ کرتے ہیں. اسی اکاؤنٹنگ کو ہم کہتے ہیں ہیومن ریسورس اکاؤنٹنگ. سو ہیومن ریسورس اکاؤنٹنگ is that branch of accounting which deals with different aspects of human resource, which is a very valuable asset for an organization. Then we have one more branch of accounting that is called as inflation accounting. ڈیئر فرینڈس, میں نے ابتدا میں ہی آپ کو کہا یہ ویڈیو جب آپ دیکھیں گے اس سے پہلے آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیے جس میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا لمیٹیشنز آف اکاؤنٹنگ. لمیٹیشنز آف اکاؤنٹنگ میں نے آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتائی تھی کہ وہاں پہ انفلیشن کا امپیکٹ اگنور کیا جاتا ہے. چونکہ میں نے آپ کو بتایا فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں جب ہم ایسیٹ ریکارڈ کرتے ہیں ہم ہسٹوریکل ویلیو پہ ایسیٹ ریکارڈ کرتے ہیں. ہسٹوریکل ویلیو وہ ویلیو ہوتا ہے کہ جس ویلیو پہ ہم نے کسی ایسیٹ کو ایکیور کیا ہے اسی ویلیو پہ ہم اس کو ریکارڈ کرتے ہیں. لیکن اس ایسیٹ کا مارکیٹ میں آج ویلیو
कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें जो बैलेंस शीट के ज़रिए से हमें एसेट्स का वैल्यू दिखाया जाता है वो रियल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू नहीं होता। लेकिन इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जिस अकाउंटिंग में हम प्राइस लेवल चेंजेस जो हैं यानी चेंज इन प्राइस जो है उसका इम्पैक्ट जो है उसका हम बड़ा ख्याल रखते हैं, यानी प्राइस लेवल चेंजेस और उसका इम्पैक्ट एसेट्स की वैल्यू पे हम उसका टेक केयर करते हैं। यानी इस इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में हम एसेट्स को जब रिकॉर्ड करते हैं हम उनको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं करते बल्कि हम उनको रिकॉर्ड करते हैं करंट कॉस्ट मेथड में। हम उनका रिकॉर्ड करते हैं कि करंटली मार्केट में उनका क्या वैल्यू हो सकता है। सो वी रिकॉर्ड एसेट्स अंडर इन्फ्लेशन अकाउंटिंग by using current cost method instead of historical cost method. So अगर देखा जाए इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की मदद से जो हम फाइनेंशियल पोजीशन बताएंगे, जो एसेट्स की वैल्यूएशन हम करेंगे वो रियल वैल्यूएशन होगी, वो एक्चुअल वैल्यूएशन होगी, वो अप टू डेट और करंट वैल्यूएशन होगी, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यूएशन नहीं होगी। सो डियर फ्रेंड्स, ये एक मॉडिफिकेशन है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग बेटर फिनेंशियल पोजीशन प्रेजेंट करेगी हमारे सामने इन कंपैरिजन टू फिनेंशियल अकाउंटिंग। लास्ट बट नॉट लीस्ट एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। पिछले कई दहाइयों से आप देख रहे हैं कि हम डेवलपमेंट के बजाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट का स्लोगन दे रहे हैं। अब डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट बन चुका है। यानी हम तो खुद डेवलप होना चाहते हैं, इसके बाद जो इस ज़मीन पे आने वाली नस्लें हैं हम उनका भी ख्याल रख रहे हैं, उनके लिए भी कुछ छोड़ के चले जा रहे हैं। इसलिए एनवायरनमेंट के तई अब लोग इंतहाई ज़्यादा हसास हो चुके हैं। पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, नॉइज़ फ्री, नॉइज़ पोल्यूशन को रोकना है, एयर पोल्यूशन को रोकना है, वाटर पोल्यूशन को रोकना है। इस सब के बारे में अब लोग हसास हो चुके हैं क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं किया गया ये सारी दुनिया को ले डूबेगा। इसकी वजह से सारी इंसानियत खतरे में पड़ेगी। इसलिए जब इको का तस्वर आ रहा है, इको फ्रेंडली, हर चीज़ अब इको फ्रेंडली की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, इसी तरह एनवायरमेंटल अकाउंटिंग भी ये वो कॉन्सेप्ट है जो ई बिजनेस की तरफ हमारा तवज्जो मबजूल कर रहा है या हमारी ध्यान को उस तरफ मोड़ रहा है कि देखेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ऑर्गेनाइजेशन कितनी कंसर्नड है टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का क्या कंट्रीब्यूशन है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के मुतालिक, क्या ऑर्गेनाइजेशन तो मत ऐसे बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रही है, क्या ऑर्गेनाइजेशन मत ऐसे ऑपरेट कर रही है कि इसकी वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। सो एनवायरमेंटल अकाउंटिंग एनवायरमेंटल एस्पेक्ट पे ध्यान देती है। अंडर दिस अकाउंटिंग हम क्या करते हैं, वी लुक इनटू द कंसर्न्स, नॉट ओनली द कंसर्न्स एज वेल एज वी highlight the contribution of a business concern towards environmental protection. So दोनों चीज़ें, ऑर्गेनाइजेशन कितनी कंसर्नड है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की इशू के मुतालिक और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये एस्पेक्ट हम एनवायरमेंट अकाउंटिंग में देख रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, लेट अस क्विकली ब्रश इट अप। जल्दी से हम रिपीट करेंगे कि मैंने आपको आज इस वीडियो में क्या पढ़ाया। इस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। मैंने आपको बताया जो ग्लोबल वर्ल्ड या जो वर्ल्ड सिनेरियो तब्दील हो रहा है, जो वर्ल्ड में बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही है, उन तब्दीलियों की वजह से अकाउंटिंग से भी कुछ अलग डिमांड हो रहा है। लोगों के तवक्कात इस सब्जेक्ट पे बढ़ चुके हैं, उनकी नीड्स भी इस सब्जेक्ट से बढ़ चुकी हैं। इसलिए इस अकाउंटिंग सब्जेक्ट को इसका स्कोप जब बढ़ चुका है तो फिनेंशियल अकाउंटिंग के जो लिमिटेशंस थे
उन लिमिटेशंस को एड्रेस करना और करंट नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए अकाउंटिंग के स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस बन चुके हैं, जिनमें मैंने आपको कहा फिनेंशियल अकाउंटिंग, कास्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये तो पुराने ही ब्रांचेस हैं। अब न्यू और इमर्जिंग ब्रांचेस भी हैं, सोशल अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, एनवायरनमेंटल अकाउंटिंग। जल्दी से मैं फिर से ब्रश अप कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा फिनेंशियल अकाउंटिंग का सिंपल सा फंडा है, इसका सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि ये रिकॉर्ड करती है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। फिर हमारे सामने इंफॉर्मेशन रखती है कि हमने प्रॉफिट अर्न किया है, लॉस हुआ है। फिर ये भी बताती है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वीक है या स्ट्रांग है। और ये सारी इंफॉर्मेशन को उन इंटरेस्टेड पार्टीज तक पहुंचाती है जो इस इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं। कास्ट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जो हमें ये बताती है कि जो मार्केट में हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस कीमत पे हम बेचें, उससे उस कीमत को फिक्स करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें खुद उसमें कितनी लागत लग चुकी है। वो लागत कितनी लग चुकी है किसी प्रोडक्ट को बनाने में या किसी सर्विस को प्रोवाइड करने में, वो हमें बताती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ लागत ही कैलकुलेट नहीं करके दे देती, बल्कि ये कॉस्ट को कंट्रोल भी करती है और कॉस्ट को कैलकुलेट भी करती है। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात है। मैंने आपको कहा मैनेजमेंट को बिजनेस ऑपरेट कराने के लिए, बिजनेस को फंक्शन और रन कराने के लिए जो डे टू डे लेवल पे डिसीजंस लेने होंगे, जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग करनी होगी, उसके लिए उसको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए और वो इंफॉर्मेशन वक्त पे मिलनी चाहिए और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग दे देती है। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन अपने मुकर्ररा वक्त पे फराहम करती है और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन फराहम करती है, जिस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे मैनेजमेंट डिसीजंस ले लेती है। फिर मैंने आपको कहा सोशल अकाउंटिंग क्या है, तो मैंने आपको बताया ये असल में इसका फंडामेंटल जो है, असल में इसकी बुनियाद जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में है कि आज हम देख रहे हैं कि बिजनेस एक सोशली रिस्पॉन्सिबल यूनिट है। सो प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ उसको सोशली भी रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। अब इस सोसाइटी पे एक बिजनेस के डिसीजंस और एक्टिविटीज़ का क्या इम्पैक्ट है, उसको रिकॉर्ड करना, उसको मेजर करना और फिर उसकी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना, यह काम है सोशल अकाउंटिंग का। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ने एक उस एसेट को एड्रेस किया है जो एसेट आज तक नज़रअंदाज हुआ ऑर्गेनाइजेशन में। सारे एसेट्स तो वहाँ रिकॉर्ड होते हैं, उनकी वैल्यूएशन होती है, लेकिन एक वैल्यूएबल एसेट जो ऑर्गेनाइजेशन में है डेट इज कॉल्ड एज ह्यूमन रिसोर्स, इस एसेट को न कहीं पे रिकॉर्ड किया जाता है, न कहीं पे इसकी वैल्यूएशन होती है, लेकिन इस एसेट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग वजूद में लाई गई। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जो एड्रेस करती है जो कि मार्केट में जो प्राइस लेवल चेंजेस हो रहे हैं, उस प्राइस लेवल चेंज की वजह से वैल्यूएशन ऑफ एसेट पे क्या इम्पैक्ट आता है, उसी इम्पैक्ट को एड्रेस करती है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। और एनवायरनमेंटल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जिस अकाउंटिंग की बुनियाद पे हम एक ऑर्गेनाइजेशन का कंसर्न और उसका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन, ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिस इशू को एड्रेस करती है एनवायरनमेंटल अकाउंटिंग। इसी की रिकॉर्डिंग और इसी की मेजरमेंट और इसी की फिर रिपोर्टिंग हम लोगों के सामने रखते हैं एनवायरनमेंटल अकाउंटिंग के ज़रिए से। होप माय डियर स्टूडेंट्स यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर एंड you have understood this lecture. Thanks for watching. Fi amanillah.